وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما تدين تدان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے جا مار نہ سکے کو بال نبی کا کر سکے سب جگ پری ہو. آمادیوں تو مجھ کو مٹانے پہ تھا جہاں، لیکن تیری نگاہ کرم سے مہربان، لیکن تیری نگاہ کرم سے مہربان. ناکام ہو گئی ہے میرے دشمنوں کی چال. اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. یا رب میرے قلم کو تو روشنائی دے، میں جھوٹ جب لکھوں تو اندھیرا دکھائی دے، میں جھوٹ جب لکھوں تو اندھیرا دکھائی دے. میرے شور فکر میں تیرا ہی ہے جمال. اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. خوبصورت جلسہ اور مدرسے کا دامن کھچا کھچ بھرا ہوا، چمکتی ہوئی پیشانی چمکتی ہوئی ٹوپی. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے مقدر کو چمکائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ مصیبت ہوگی تو آسمان کو سر پر اٹھا لیں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. پہلا امتحان ہو چکا ہے کہ آپ لوگ کہاں ہیں، یہی ہے کہ کہیں اور ہے. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. میرا پہلا سوال ہے کہ خدا امیر پر زیادہ مہربان ہے یا غریب پر زیادہ مہربان ہے؟ کس پر زیادہ مہربان ہے، امیر پر یا غریب پر؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. ماشاءاللہ بچوں کی طرف سے لقمہ بہت زیادہ پڑ رہا ہے. دوسرا سوال آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. امیر کے پاس تو زمین، مکان، روپیہ، پیسہ، یہ ساری دولت ہے. غریب کے پاس کون سی دولت ہے؟ جو دولت غریب کے پاس ہے وہ امیر کے پاس بھی نہیں تھی. یہ میرا دوسرا سوال ہے، وہ کون سی دولت ہے؟ تیسرا اور آخری سوال آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. امریکہ میں ابھی آگ لگی، 40,000 ایکڑ زمین جل کر راکھ ہوئی، 16,000 مکان تباہ ہوئے، 150 ارب ڈالر کی مالیت راکھ ہوئی، 2 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے. یہ آگ لگی تو کیسے، کہاں سے لگی؟ یہ آخری سوال ہے، سو کر کے سنیں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. سو کر کے سنیں گے، آنکھ بند ڈبہ غائب ہو جائے. 3 سوال ہے، پیغام شروع ہو رہا ہے. میرا پہلا سوال تھا کہ خدا کس پر زیادہ مہربان ہے.
امیر پر زیادہ یا غریب پر زیادہ؟ کس پر زیادہ؟ تو لکھا کہ جب امیر آئے گا خدا کے پاس تو خدا پوچھے گا مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ جب تک حساب نہیں دو گے ایک انچ ہل نہیں سکتے۔ امیر آیا خدا کے پاس، خدا نے پوچھا مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ جب غریب خدا کے پاس آئے گا تو خدا پوچھے گا حال کے بارے میں، کیا حال ہے، خیریت تو ہے؟ جتنا خدا غریب پر مہربان ہے اتنا امیر پر نہیں ہے۔ دوسرے نمونے کو آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ روپیہ پیسہ ہے، زمین مکان دکان ہے تو امیر ہے، غریب کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کون سی دولت غریب کے پاس ہے؟ تو لکھا کہ اللہ جب غریب کو اپنے پاس بلائے گا اور کہے گا کہ میں نے تم کو غریب اس لیے رکھا کہ تمہیں بے حساب جنت میں داخل کرنا، اس لیے جنت میں چلے جاؤ۔ جب وہ جانے لگے گا تو دوڑ کر جانے لگے گا، خدا اس کو روک کر کے دوبارہ بلائے گا کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا، بھوک لگتی تھی کون کھلاتا تھا؟ تمہارے پاس کپڑے نہیں تھے کس نے پہنائے؟ سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی کس نے دی؟ اس نے کہا کہ فلاں امیر تھا، میرا پڑوسی تھا، اس کو رقم آ جاتا تھا، کھلا دیتا تھا، پہنا دیا کرتا تھا، سر چھپانے کی جگہ اسی نے دی تھی۔ تو اللہ فرمائے گا اکیلے مت جاؤ، اس امیر کو بھی ساتھ میں لے کر کے جاؤ، جو دولت اللہ نے غریب کو دی ہے وہ امیر تک کو نصیب نہیں ہے۔ امریکہ میں آگ لگی، لوگ کہتے ہیں ہوا سے لگی۔ امریکہ میں آگ لگی، لوگ کہتے ہیں ایران نے لگا دی۔ امریکہ میں آگ لگی، لوگ کہتے ہیں ایٹم بم چلا دیا روس نے۔ امریکہ میں آگ لگی، لوگ کہتے ہیں کہ ایک درخت دوسرے درخت سے ٹکرایا، چنگاری پھیلی، اس سے آگ لگی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی سے آگ لگی، کچھ لوگ کہتے ہیں کانز نامی پرندہ ہے، اس نے اپنے پر کو جھاڑا، اس سے چنگاری پھوٹی، آگ لگی۔ لیکن سچائی یہی ہے کہ فلسطین کے مظلوم کی آہ آسمان کو پہنچی اور آسمان سے انتقام امریکہ پہنچا، امریکہ چل کر راکھ ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے مصیبت میں صبر کریں گے انشاءاللہ۔ جب صبر نہیں ہوگا تو خودکشی کر لے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ، جنازہ پڑھانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ کس کے روکے رکا ہے سویرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، ایک پل راہ میں ہے ماں اندھیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، جس کے روکے رکا ہے سویرا، رات جتنی بھی سنگین ہوگی صبح اتنی ہی رنگین ہوگی، صبح اتنی ہی رنگین ہوگی۔ غم نہ کر گر ہے بادل گھنیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، لب پہ شکوان لا اشک پی لے، جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے، جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے، اب کھڑنے کو ہے غم کا ڈیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، یوں ہی دنیا میں آ کر نہ جانا، صرف آنسو بہا کر نہ جانا، مسکراہٹ پہ بھی حق ہے تیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا۔ ماشاءاللہ، جب میں آیا اس شہر کے اندر تو میں رات میں ہوں، رات سے ہوں، صبح جب اذان ہوئی تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا کہ کیا ہے یہ، مکہ ہے یا ہندوستان ہے؟ 24 اذان کو تو میں انگلی پر گر چکا تھا، لیکن پتہ چلا 50 سے زیادہ مسجد ہے۔ اللہ اس علاقے کو اذان سے، قرآن سے آباد فرمائے، مبارکباد فرمائے۔ نبی کی سیرت کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ نبی کی سنت کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں، قبول کیسے ہوتا ہے؟ تو لکھا جو اللہ کی خوشی کے لیے ہو، نبی کے طریقے پر ہو، نبی کی سنت کے مطابق ہو، خدا کی خوشی کے لیے ہو، یہ ہر وہ کام نیک ہے اور یہ سر سے اوپر جاتا ہے، آسمان پر جاتا ہے، عرش تک جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے۔
सुन्नत के मुताबिक हो, खुदा की खुशी के लिए हो, सुन्नत के मुताबिक हो, नबी के तरीके पर हो, नेक अमल है, सर से ऊपर गया, आसमान पर गया, अर्श तक गया, कबूल हो गया। एक आदमी नमाज घर में पढ़ता तो सुकून से पढ़ता है, जब आदमी वही नमाज मस्जिद में पढ़ने के लिए आता है तो उसको ख्याल परेशान कर रहा है। अभी आदमी नमाज पढ़े तो कहाँ पढ़े, घर में सुकून से पढ़ता है, वहां ख्याल परेशान नहीं करता। मस्जिद में आता है तो ख्याल परेशान करता है, तो लिखता है कि फर्ज नमाज है, घर में पढ़ नहीं सकता, मस्जिद में आकर के पढ़ना होगा, चाहे बेचैन होकर के पढ़े। घर में पढ़ेगा सुन्नत से दूर होगा, मस्जिद में पढ़ेगा सुन्नत से करीब होगा। उम्मीद की जाती है कि कबूल भी होगी, नमाज अदा भी होगी। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। छोटा सा काम एक मुसलमान ने आकर के किया कि दायां पांव उतार करके मस्जिद में दाखिल किया, दायां पैर से चप्पल उतार करके मस्जिद में दाखिल किया है, छोटा सा काम किया। दूसरा आदमी मस्जिद से बाहर बगैर पर के, बगैर बाजू के उड़ रहा है, करतब दिखा रहा है। कौन आदमी बढ़कर के है कारनामा में, तो लिखा कि जो आदमी मस्जिद के ऊपर उड़ रहा है उसकी जिंदगी में सुन्नत नहीं है। जो आदमी नबी के तरीके के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक दायां पैर मस्जिद में दाखिल कर रहा है, वो अल्लाह का दोस्त भी हो गया, अल्लाह की मोहब्बत भी उसको मिल गई, अल्लाह से करीब भी हो गया। एक छोटा अमल किया, खुदा से करीब हो गया। वो मस्जिद से बाहर उड़ करके भी कहीं नहीं पहुंच सका, न उसकी दुनिया बनी न आखिरत बना सका। एक आदमी दाढ़ी मोच नहीं रखता था, कोट पतलून में था, ऊपर से हाथ में कुत्ता लेकर के ट्रेन में बैठा। जब भी कोई मुसलमान आए तो दूसरे मुसलमान को सलाम करे, उसको सलाम ना करे तो खफा हुआ कि मैं भी मुसलमान हूं, आप लोग हमको सलाम क्यों नहीं करते। क्या यार, शक्ल से तो मुसलमान लगते नहीं हो, ऊपर से कोट पतलून में हो, अंग्रेज की तरह कुत्ता लेकर के बैठे हो, कैसे यकीन हो तो मुसलमान हो, तुम्हें सलाम किया जाए। तो उसने नुक्ता बयान किया कि आप लोग खफा मत होइए, मैं भी मुसलमान हूं, कुत्ता इसलिए रखता हूं कि जिस घर में कुत्ता होता है उसमें फरिश्ता नहीं आता, और जब रूह निकालने के लिए आता है तो फरिश्ता आता है। मेरे हाथ में कुत्ता होगा तो मेरे पास आएगा ही नहीं, वापस चला। तो उस बेवकूफ को उस अकलमंद मुसलमान ने कहा कि आखिर कुत्ता भी तो मरता है, जो कुत्ते की रूह निकालता है वही तुम्हारी रूह निकालेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नबी के सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। जेल में जाकर के सीधे दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जेल पहुंचाने के लिए हम आ गए। बड़े गुनगुनाते थे लाला निरंजन, न आंखों में इंजन न दांतों में मंजन। बड़े गुनगुनाते थे लाला निरंजन, न आंखों में इंजन न दांतों में मंजन। बड़े गुनगुनाते छुपे हमसे बिल्कुल वो अगले तरीके, छुपे हमसे बिल्कुल वो अगले तरीके। कहाँ खींच ले जाएगा हमको इंजन, छुपे हमसे बिल्कुल वो अगले तरीके। कहाँ खींच ले जाएगा हमको इंजन। मैं जो बैठा, बच्चे ने तराना पेश किया, उसके बाद मेरे इस्तकबाल के लिए लोग फूल लेकर के आए, तो फूल में इतना वजन था, मैंने सोचा कि आधा घंटा अगर लेकर के खड़ा रहा तो मेरी गर्दन टूट जाएगी। और इतना माला पड़ रहा था मेरे गले में इस्तकबाल के तौर पर कि शादी में भी उतना माला नहीं पड़ा। और मुझे डर लगा कि जब माला ज्यादा पड़ता है तो आदमी ऊपर ही चला जाता है। और दूसरा डर ये लगा कि जहां माला ज्यादा होता वहां माल कम मिलता। खैर, अल्लाह सलामत रखे, आपके जज्बे को अल्लाह सलामत रखे। आप अपने मेहमान का डूब करके इस्तकबाल करते हैं, अल्लाह इस मेहमान नवाजी को सलामत रखे। और आपके घर में, एक एक घर में आलिमों को और हाफिज कुरान को पैदा फरमाए। कुरान के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ। दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है जो बता दे कि आपका दिल जिंदा है या मुर्दा। दुनिया में कोई ऐसा आलिम नहीं है जो बता दे कि खुदा से आपका ताल्लुक है। दुनिया में कोई ऐसा मुरब्बी नहीं है जो बता दे कि आपकी दुआ कबूल होती है। लेकिन एक चीज दुनिया में है, वो हमारे घर में भी है, मस्जिद के ताक में भी है, जो आज भी बता देती है कि आपका दिल जिंदा है या मुर्दा।
दुआ कबूल होती है कि नहीं, खुदा से ताल्लुक है कि नहीं। वो कौन सी चीज़ है? एक ही है कुरान। इस दिल के अंदर कुरान है तो ये दिल जिंदा है, अगर इस दिल से कुरान निकल गया तो ये मुर्दा है। उसकी पहचान है कि जगाने पर भी नहीं जागता। अगर इस कुरान पर अमल है तो दुआ कबूल होती है, कुरान पर अमल नहीं है तो गारंटी नहीं है कि दुआ कबूल होती है। कुरान से ताल्लुक है तो खुदा से ताल्लुक है, कुरान से ताल्लुक नहीं तो खुदा से कोई ताल्लुक नहीं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह लिखते हैं कि कुछ लोगों को आप देखेंगे तस्बीह लेकर के सुभान अल्लाह पढ़ते, कुछ लोगों को देखेंगे आप मोबाइल खोल करके कुरान पढ़ते। लिखा कि दोनों में फर्क क्या है? तो उन्होंने लिखा कि जो तस्बीह पढ़ते हैं वो खुदा तक जल्दी पहुंच जाते, लेकिन सुबह को पहुंचते हैं, शाम में जुदा हो जाते। जो लोग कुरान पढ़ते हैं वो खुदा तक देर से पहुंचते हैं, लेकिन जब पहुंचते हैं तो कभी जुदा नहीं होती। कुरान का फर्क है। सारी दुनिया आग से भर जाएगी, ऊपर से एक रस्सी आएगी, उस रस्सी को जिसने पकड़ लिया वो ऊपर से आग से निकाल लिया जाएगा। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो रस्सी कोई और चीज नहीं है, कुरान है। कुरान को पकड़ लो, इस दुनिया की भी मुसीबत से नजात पालो और आखिरत की मुसीबत से भी नजात पालो। 16,000 घर तबाह हो गए लॉस एंजलिस में, 16,000 घर, उसमें एक घर बचा हुआ था बीच में, सारे घर तबाह हो गए, जलकर राख हो गए और ऐसा लग रहा था कि एटम बम मार दिया गया है। अमेरिका नहीं है नागासाकी, एटम बम मार दिया गया। 16,000 घर में सिर्फ एक घर बचा हुआ है, चारों तरफ से घर जल गया, एक ही घर बचा हुआ है। जब लोगों ने हैरत से उस घर के अंदर दाखिल होकर के देखा कि भाई ये क्यों बच गया, उसमें कुरान रखा हुआ था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चे को कुरान की तालीम देंगे, बाद में डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर बनाएंगे इंशाअल्लाह। जो सबसे ज्यादा बेवकूफ होगा उसको मदरसे में दाखिल करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप कन्या के भी मामू से दुल्हा के भी। नाते नबी का हौसला कुरान से मिला, कुरान से मिला। नाते नबी का हौसला कुरान से मिला, कुरान से मिला। ये शौक हमको हसरत हसन से मिला। नाते नबी का हौसला कुरान से मिला। अल्लाह के सिवा कोई माबूद ही नहीं, माबूद ही नहीं। पहला पयाम ये हमें फारान से मिला। नाते नबी का हौसला कुरान से मिला। यासीन से तशफ़ी कल्बो जिगर मिली, कल्बो जिगर मिली। यासीन से तशफ़ी कल्बो जिगर मिली, कल्बो जिगर मिली। इज़हारे शुक्र सूरह रहमान से मिला। नाते नबी का हौसला कुरान से मिला। पैगाम कुरान के हवाले से खत्म हो गया। तालीम के हवाले से बच्चे आपके छोटे छोटे जाग रहे हैं माशाल्लाह। मैं तो देख रहा हूँ जवानों से ज्यादा तादाद बच्चों की है, 18-54 की है। ये जाग रहे हैं, ये कल सो गए थे, बिस्तर पर पेशाब करके गंगा बहा दिया था। अल्लाह का शुक्र है ये जाग रहे हैं, बिस्तर बचा हुआ है। इनके वास्ते मैं दिल से दुआ करता हूँ इन बच्चों को अल्लाह इल्म हुनर से माला माल फरमाए, इनके मुकद्दर को जगाए। तालीम के हवाले से आप जैसे बैठे हैं उसी तरह मैं बैठा हूँ। गौर कीजिएगा, इस बैठने पर गौर कीजिए, आपको इल्म की अजमत का पता चलेगा। जैसे मैं बैठा हूं उसी तरह आप बैठे। हाथ पांव नीचे है, आपका भी हाथ पांव नीचे है। दिल बीच में है, आपके भी दिल बीच में है। दिमाग सबसे ऊपर है। इस तकसीम पर जब गौर करेंगे तो आपको इल्म की अजमत का पता चलेगा। हाथ पांव से काम काज किया जाता है, इसको सबसे नीचे रखा। हाथ पांव से काम काज किया जाता है, इसको सबसे नीचे रखा। दिल से दौलत कमाई जाती है, इसको बीच में रखा। और दिमाग से इल्म हासिल होता है, इसको सबसे ऊपर रखा। क्या मतलब था? अगर तुम्हारे बच्चे की गोद में इल्म होगा तो अल्लाह जिल्लत की पस्ती से उठाएगा, इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा।
یوسف علیہ السلام کو دو چیز ملی. پہلی چیز ملی حسن ملا, دوسری چیز ملی علم ملا. جب حسن ملا تو مصیبت ہی کا سامنا ہے. چوری کا الزام لگا, کنویں میں ڈالے گئے, کنویں سے نکالے گئے اور پھر قافلہ والوں کے ہاتھ بیچے گئے. اس حسن کی وجہ سے زلیخا نے جیل میں ڈال دیا. لیکن جب دوسری چیز ملی تو مصیبت سے نجات پا گئے. علم ملا, جیل سے باہر آ گئے, کرسی پر بیٹھے 90 سال تک مصر پر حکومت کیا. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام سے کہا 3 چیزوں میں ایک چیز دوں گا, لینا کیا ہے فیصلہ کر لو. یا تو حکومت لے لو, کرسی لے لو, یا تو دولت لے لو, مال لے لو, یا تو علم لے لو. سلیمان علیہ السلام نے تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر کے کہا مالک ہم کو علم دے دو. اللہ کی طرف سے جواب آیا سلیمان مبارک ہو, تم نے اصل چیز حاصل کر لیا. علم کے بغیر یہ حکومت نہیں ہے, علم کے بغیر یہ مال و دولت نہیں ہے. اور علم جب تم نے اصل چیز حاصل کر لی تو سلیمان لو میری طرف سے حکومت فری میں لے لو, مال و دولت فری میں. آخری نمونہ آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں, دھیان سے سنیے گا. ایک آدمی کو پتا نہیں تھا کہ کھیر کیسے بنتی ہے. اس نے پوچھا کہ کھیر کیسے تیار ہوتی. اس نے کہا اس میں چاول ہوتا, اس میں چینی ہوتی, اس میں دودھ ہوتا. بڑا خوش ہوا, یہ تو آسان, پکا لیں گے. ایک مٹھی چاول لے کر کے پھاڑ گیا, ایک مٹھی چینی کھا گیا, ایک گلاس دودھ پی گیا, کپڑا اتار کر چولہے پر لیٹ گیا کہ کھیر پک گئی. کھیر تو پک گئی لیکن پیٹ پتھر ہو گیا. اب ڈاکٹر کے پاس آیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ کیا کھا لیا تھا, تمہارا پیٹ تو پتھر ہو رہا. کہا حضور کھیر کھائی. کھیر تو نرم ہوتی ہے, تمہارا پیٹ کیسے پتھر ہو گیا. کہا حضور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کھیر تو نرم تھی لیکن پکائی تھی کسی اور ترکیب سے. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجیے اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے, ہر کام کو پیچھے رکھیں گے, اوقات کو تو پہ لگائیں گے, اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہر کام پہلے ہوگا, نکاح بعد میں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جس کا ابھی چانس نہیں ہے نکاح کا وہی لوگ زیادہ ہاتھ اٹھائیں. ووٹر لسٹ میں علم کو زیست کا عنوان بنائے رکھنا, تم کتابوں سے سدا گھر کو سجائے رکھنا, تم کتابوں سے علم کو زیست کا عنوان بنائے رکھنا, تم کتابوں سے سدا گھر کو سجائے رکھنا. یہ جہالت کے اندھیرے تو پگھل جائیں گے, یہ جہالت کے اندھیرے تو پگھل جائیں گے. شمع علم و ادب یوں ہی جلائے رکھنا, شمع علم. ایک تہائی جلسہ کا نکل چکا, آپ محبت میں سن رہے ہیں, آپ اتنا غور سے ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے. لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں, دم کر کے بیٹھا. آپ نظر لگاتے رہیے, نظر کرتی رہیے. چوتھا پیغام دنیا اور آخرت کے حوالے سے آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ بہت محبت سے سن رہے ہیں, زبان کی رفتار بتا رہی ہے کہ آپ محبت سے سن رہے ہیں. میں آپ کو محبت میں سنا رہا ہوں. اللہ ہمارے سنانے کو, آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. دنیا اور سانپ دونوں برابر. سانپ جب ڈستا ہے تو زہر کیسے لگتا ہے, آدمی کیسے مرتا ہے. انگلی میں سانپ نے کاٹا, اب یہ زہر پھیل کر کے سینے تک پہنچا, سینے سے سر تک گیا, پورے جسم میں سرایت کر گیا, آدمی پھڑپھڑا کر کے. یہ سانپ کا زہر ہے. جب لگتا ہے تو آدمی تھوڑی دیر میں مر جاتا ہے. اسی طرح یہ دنیا ہے. دنیا کا زہر جب لگتا ہے تو جیب سے پیسہ نکل کر کے دل کے اندر آ جاتا ہے, گھر سے پیسہ نکل کر کے دل کے اندر اتر جاتا ہے. پیسہ ضرورت نہیں رہتا بلکہ محبت بن جایا کرتا ہے. اب اس آدمی کو زہر لگ گیا سانپ کی طرح, وہاں سانپ کے زہر سے تو جان چلی گئی, یہاں پہلے ایمان کا نور گیا, اس کے بعد ایمان چلا. لیکن ایک بات تجربے کی ہے, سب کو سانپ نہیں کاٹتا اور سب کو سانپ کا زہر نہیں لگتا.
सपेड़ा है, वो सांप को पकड़ लेता है, आराम से पिटारे को बंद कर लेता है, क्यों? उसको मंत्र मालूम है। सांप काटेगा भी तो मंत्र से वो दम कर लेगा, असर खत्म हो जाएगा। ठीक इसी तरह दुनिया सबको नुकसान नहीं पहुंचाती। जिसकी जेब में दुनिया है, जिसके घर में दुनिया है, दिल के अंदर दुनिया नहीं है, उसको दुनिया नुकसान नहीं पहुंचाती। सारे जवान से यही एक सवाल है कि भाई कमाओ, कमाना फर्ज है, लेकिन कभी कभी कमाना हराम भी है। जिस जवान को पता नहीं है कि हलाल क्या है, हराम क्या है, उसके लिए दुनिया कमाना हराम है। अभी एक बच्चा खड़ा होकर के आया था, माँ बाप के हवाले से मुकालमा पेश कर रहा था कि मेरे माँ बाप मुझको खिलौना ला करके नहीं देते, मेरी फरमाइश पूरी नहीं करते। मेरा बड़ा दिल खुश हुआ कि उस बच्चे का जहन दूसरे बच्चे ने किस तरह साफ किया। और उसमें एक जुमला आया बड़ा प्यारा कि माँ की मोहब्बत तो नजर आती है, बाप की मोहब्बत को महसूस किया जाता है। बड़ा खूबसूरत जुमला था, बड़ा प्यारा जुमला था। अल्लाह इन बच्चों के इल्म में, उम्र में, अखलाक में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। अकबर इलाहाबादी बहुत बड़े शायर थे, इंतकाल कर गए। जब उनके बेटे की शादी हो रही थी तो शादी में उन्होंने अपने बेटे को गिफ्ट किया। जब बेटे ने उस गिफ्ट को खोला तो उसमें खिलौना नहीं। अब उस बेटे का मारे शर्म के सर झुक गया और बाप से कहा कि अब्बा, इतने लोगों के बीच में आपने मेरा सर झुका दिया, मुझको शर्मिंदा कर दिया। जवान बेटे को खिलौना नहीं दिया जाता, बल्कि बचपन में खिलौना दिया जाता है। आपने जवान बेटे को शादी के मौके से खिलौना दिया। अकबर इलाहाबादी ने मौके का चौका मारा, बेटा मैं तुम्हें उंगली पकड़ करके मेले में लेकर के आया था, तुमने खिलौना के लिए जिद पकड़ ली, मेरी जेब में पैसा नहीं था, तुमने पूरे मेले के लोगों में मुझको शर्मिंदा किया। मैंने सोचा कि मौका मिलेगा तो इस शर्मिंदगी को दूर करूंगा। जो बचपन में मैंने तुम्हारी मुराद पूरी नहीं की, वो तमन्ना मैंने जवानी में पूरी कर दी। लेकिन बेटा याद रखना, बचपन की जब तमन्ना जवानी में खुलती है तो आदमी शर्मिंदा हो जाता है, सर झुक जाता है। जवानी में कोई ऐसी तमन्ना मत करना, जब आखिरत में खुदा के सामने खोला जाए तो तुम महशर में सबके सामने शर्मिंदा हो जाओ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दुनिया के चक्कर में अपने दीन को बर्बाद नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, आप लोग का बिल्कुल ये साथ दे रहे हैं। अपने बेनूर चरागों को जिया दी जाए, न कि हम साए की कील बुझा दी जाए, न कि हम साए की कील बुझा दी जाए। अपने बेनूर चरागों को जिया दी जाए, न कि हम साए की कील बुझा दी जाए। कब्र का चौखटा खाली है उसे मत भूलो, कब्र का चौखटा खाली है उसे मत भूलो। जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए, जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए, जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए। मैं माशाअल्लाह दावत और तबलीग का एहसानमंद हूँ कि महाराष्ट्र में आने के बाद भी उर्दू में तकरीर कर रहा हूँ। लोग उर्दू सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, इशारा को भी समझते हैं, मुहावरा को भी समझते हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे तबलीग वालों को कि उन्होंने उर्दू को इतना आम किया, इतना आम किया, इतना आम किया। आज महाराष्ट्र में आने के बावजूद भी हमको तर्जमान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दुआ कीजिए तबलीग में अल्लाह इत्तिहाद और इत्तेफाक पैदा फरमाए, आपसी इख्तिलाफ से, इंतशार से अल्लाह कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। हलाल और हराम के हवाले से पैगाम, मुझे अगर टाइम नहीं मिलता, आधा जलसा आपका निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया है। पता भी नहीं चलेगा, जैसे आपको पता नहीं चल रहा वैसे हमें भी पता नहीं चलेगा। जलसा आपका एक झटके में ख़त्म हो जाएगा। साहिल पर कश्ती पहुंचने वाली है, एक झटके में इंशाल्लाह पार हो जाएगी। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है, इंशाल्लाह एक झटके में वो भी निकल जाएगा। आपके हाथ में भी पैसा होगा, आपकी जेब में भी पैसा होगा, आपके घर में भी पैसा होगा। पैसा कभी खत्म नहीं होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी। गारंटी है, मसनद रसूल पर बैठ करके मैं आपसे वादा कर रहा हूं। आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। पैसा खत्म नहीं होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ दो काम करने, इसको डायरी पर नहीं, दिल की डायरी पर नोट कीजिए। पहला काम हलाल कमाना। अगर आप हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस ले रहा हूं। और दूसरा काम
हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च करना है। ज्यादा पैसा नहीं है, ज्यादा खर्च नहीं करना है। अगर पैसे को आप पानी की तरह बहा रहे हैं, मैं गारंटी वापस ले। एक साल आप हराम से बच करके हलाल कमा करके दिखाइए, हिसाब से खर्च करके दिखाइए। मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेकर के जा रहा हूं, आप कभी गरीब नहीं होंगे। आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं। अगर कोई आपके मोहल्ले में, समाज में दो तरह के लोग आएंगे, LIC वाले आएंगे और समूह ग्रुप वाले। आप इन लोगों से बचिए, ये आपका ईमान भी लेंगे और आपकी शान भी लेंगे। ये सूद आपको खिलाएंगे, हराम आपके घर तक पहुंचा देंगे। कसूर एक आदमी का होगा और पूरे घर को सजा मिलेगी। सूद का पैसा कितना बुरा है कि 36 बार जिना करने से भी बदतर है। एक सूद से 70 गुना होते हैं। सबसे छोटा गुना अपनी मां से जिना करने के बराबर है। एक लुकमा कितना छोटा होता है, हाथ में आता है और हलक के नीचे उतरता है। सिर्फ एक लुकमा अगर हलक के नीचे हराम का उतर गया, 40 दिनों तक कोई नेकी कबूल नहीं होगी। एक लुकमे का जब ये हाल है तो इस गुदाम को, जहन्नम को भरने का कितना बड़ा नुकसान होगा। आपने 2 पैसा किसी का मार लिया, आपके नामे अमाल से 700 मकबूल नमाजें ले ली जाएंगी। आपने हराम कमाया, मस्जिद में चंदा हराम पैसे से दिया, मस्जिद में आकर के चंदा हराम पैसे से किया, गरीबों की इमदाद आपने खैरात हराम पैसे से किया। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे पाक कपड़े को खून में धो रहा है, कपड़ा और नापाक होगा, पाक नहीं। रात के अंधेरे में एक आदमी चोर था, चोरी करता था। बाग में पहुंचा, संतरे का बाग था। वहां गया तो दरख्त से कहता है कि मैं भी खुदा का, ये दरख्त भी खुदा का, ये फल भी खुदा का, अब मैं तोड़ करके खा रहा हूं, कौन होता है मुझे रोकने वाला, टोकने वाला। 99 दिन चोर के एक दिन बटवारा का। अब बाग का मालिक सोच रहा कि यार फल कहां जा रहा है। वो पहरे पर बैठा हुआ तो देखा कि मंतकी चोर आया। उसने इसी स्टाइल से चोरी शुरू किया। मैं भी खुदा का, ये दरख्त भी खुदा का, ये फल भी खुदा का, मैं खुदा का फल खा रहा हूं, कौन होता है कोई रोकने वाला। तो उसने जल्दी से इसको आकर के पकड़ा, कमर में रस्सा लगाया, दरख्त से बांध दिया, हाथ में लाठी ली, मारना शुरू किया। जब ये चिल्लाने लगा तो उसने कहा मैं भी खुदा का, ये लाठी भी खुदा का, मार भी पड़ रही है खुदा के हुक्म से, तो फिर रोता क्यों है। अब उसको समझ में आ गया कि हलाल क्या होता है और हराम क्या होता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। परशुराम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। परशुराम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही बातें करती थी, सदा ही बातें करती थी। जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था, उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी नाके से, मुड़ जाती थी नाके से। परशुराम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तपता पानी पीती थी। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की, उनका हद से बड़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। परशुराम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। हालात हाजरा को रखिए सामने और ये खूबसूरत पैगाम। इस बीमारी से कोई स्टेट बचा हुआ नहीं है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे असम हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्रा हो, कोई बचा हुआ नहीं है ऐसी बीमारी से। या ऐसी वबा है कि इससे कोई भी स्टेट, कोई भी सूबा बचा हुआ नहीं। उस पैगाम को सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप देखेंगे जब चलेंगे तो पीछे सरकारी स्कूल के बोर्ड पर लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों भाई?
बेटा बचाओ नहीं है, बेटा पढ़ाओ नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आप ट्रक के पीछे देखिएगा बोर्ड पर तख्ते पर लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हॉस्पिटल में आप देखेंगे लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों? ये क्यों लिखने की जरूरत पड़ी है? इस राज को सुना रहा। इस हिंदुस्तान में एक साल में 10 लाख लड़की को मार दिया जाता है। 10 लाख लड़की मार दी जाती है एक साल में। हिंदुस्तान में 10 लाख लड़की खलास। ये मारने वाले कोई और नहीं होते, घर के लोग होते हैं। और घर में कोई और नहीं, माँ बाप होते हैं। पेट में बच्चा है, अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया बेटा है, आने दो। ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, 1 दर्जन आ गए, बरकत आ रही, आने दो बेटा आ रहा। लेकिन जैसे ही मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटी है, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल, उसको गिरा दिया गया। गिरा देने के नतीजे में 1 साल में 10 लाख मासूम की जान चली गई। क्यों मासूम को मारते हैं? उसे पता है कि बेटा आएगा तो इसको मार्केट में बेचेंगे, बेटी वाले के यहाँ बेचेंगे, निकाह को तिजारत बनाएंगे, कमाएंगे, मालदार हो जाएंगे। बेटी अगर आई तो घर की कमाई भी दौलत दामाद लेकर के उड़ जाएगा। इसलिए मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। 1 साल में 10 लाख मासूम की जान माँ बाप लेते। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये लखनऊ है, मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह हयात से। तो एक बेटी के बाप ने खत लिखा, हुजूर इजाजत दे मैं भी जहर खा करके मर जाऊं, अपनी 4 बेटी को जहर खिला करके मार दूं। मैं भी खुदकुशी करना चाहता हूं, मैं अपनी बेटी से भी खुशकुशी करवाना चाहता हूं। तो हजरत ने पूछा क्यों? कहा कि 1 बेटी होती तो दामाद के डिमांड को पूरा करता, उसके लिए दूल्हा खरीद करके लाता, भीख मांग करके इंतजाम करता। 4 बेटी है, कहां से इंतजाम करूं? इस जिल्लत का मुंह देखने से अच्छा है कि सहर खा करके मैं भी खुदकुशी कर लूं, मेरी बेटी भी खुदकुशी होकर के दफन कर। एक दोस्त से दूसरे दोस्त की मुलाकात हो रही तो कहा क्या हाल है? कहा क्या पूछते हो? जब बेटी हमारी छोटी थी तो नींद बड़ी प्यारी आती, जब से बेटी जवान हुई है आंख से नींद उड़ गई कि कहां से इंतजाम करूंगा। गरीब आदमी, 8 बेटी के रिश्ते आए चले गए, पैसा नहीं था, इंतजाम नहीं हो सका। बेटी सुन रही थी कि दुनिया की सबसे मनहूस लड़की मैं हूं। जैसे ही मैं जवानी के दहलेज पर आई, मेरे बाप की नींद आंख से उड़ गई। उसने रात के मौके से सन्नाटे में चूहे की दवाई को घोल करके पी लिया। बाप तो जिंदा उठा, बेटी का जनाजा उठ गया। वो लड़की गुनहगार नहीं है, ये समाज गुनहगार। इधर लड़की का बाप बैठा हुआ, उधर लड़के का बाप बैठा हुआ है। तो लड़के का बाप बोल रहा है लड़की के बाप से कि हाजी साहब बेटी आपकी है, बेटा हमारा है। अंदर से तो आप सब कुछ दे रहे हैं, ऊपर से भी कुछ दे दीजिएगा। अब इसका दिमाग चकरा गया कि नीचे से गाड़ी भी दे रहा हूं, पैसा भी दे रहा हूं, सामान भी दे रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं, नगद दे रहा हूं, ऊपर से क्या मांग रहा है? तो बोला कि ऊपर से क्या लेना चाहते हैं समझी? तो कहा कि 100 गाड़ी बारात लेकर के आओ, उस गाड़ी का किराया और तेल का पैसा आप दे दीजिए। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। अगर मिला फ्री में तो छोड़ेंगे नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मौत से बढ़ गए, मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, जिंदगी फिर उन्हें रास आती नहीं। जब से उसने सुना बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज
کچھ نہ بول، کیا ہے یہ سماج کچھ نہ بول، کیا ہے یہ سماج کچھ نہ بول، کھول کر یہ بول صرف دیکھ لے، دل زبان کھول صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے، مان لے جہاں کی بات کو، دل سمجھ لے کالی رات کو، دل سمجھ لے کالی رات کو، چلنے دے یوں ہی یہ سلسلہ، کچھ نہ بول کس کو کیا ملا، کچھ نہ بول کس کو کیا ملا، ترازو کا جھول صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے۔ ابھی آپ دیکھیں گے یہ دسمبر ختم ہوا ہے، 1 جنوری میں مسلم نوجوانوں نے دارو پی کر کے ایسا ریکارڈ بنایا ہے، عیسائی تک کا ریکارڈ توڑ دیا۔ جب محرم کا ماتم آتا ہے تو ہمارے نوجوان اتنا دارو پیتے ہیں، شیعوں کا ریکارڈ توڑ دیتے ہیں۔ ہمارے نوجوان 3 کام میں آگے ہیں، کلیجہ منہ کو آ جائے گا، پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، آپ کو محسوس ہوگا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہمارے جوان 3 چیزوں میں آگے، گانے بجانے میں آگے۔ آج گانے بجانے کا ایسا نشہ ہے کہ مقدس زمین جو مکہ تھی وہ بھی آج محفوظ نہیں ہے۔ ریاض سیزن کہاں ہوا؟ مدینے میں۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مکہ مدینے کے لوگ سلمان خان کا ڈانس سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، وہ زمین بھی نہیں بچی۔ ڈانس میں مسلمان آگے، ڈانس دیکھنے میں مسلمان آگے، زنا میں مسلمان آگے۔ 30% اسکول میں بچے آ کر کے ماں کا نام لکھاتے ہیں، باپ کا نام نہیں لکھاتے۔ ماسٹر صاحب کہتے ہیں بیٹا زندہ باپ ہو تو زندہ کا نام لکھاؤ، مردہ باپ ہے تو مردہ نام لکھاؤ۔ وہ بچے کہتے ہیں ماں باپ کا گناہ تھا، اس کا نتیجہ میں تھا، مجھ کو ماں تو ملی باپ نہیں ملا، زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا، ماں سے تو محروم نہیں رہا، باپ سے محروم ہو گیا، قصور ان کا تھا، سزا ہم کو ملی۔ ہمارا جوان کس میں آگے؟ دارو پینے میں آگے۔ یہ نیا سال آیا، 2024 گیا، 2025 آیا، ہمارے جوانوں نے چکنا لے کر کے دارو پی کر کے کہ ہم مہاراشٹر میں ہیں، یہاں کی سرکار دارو پر لائسنس دیتی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ سرکار ہے، سرکاروں کی سرکار نہیں ہے۔ سرکاروں کی سرکار جو خدا ہے، اس نے دارو کے ایک قطرے کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، وہ حرام ہے، حرام رہے گی۔ لاکھ لائسنس آپ کو مل جائے، آپ دارو نہیں پی سکتے، اس کو حلال جس دن آپ نے سمجھا سینے سے ایمان چلا گیا۔ جانتے ہیں ہمارے جوان دارو کیوں پیتے ہیں؟ 3 وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے دارو حلق کے نیچے آئی، سینے سے خوف خدا نکل گیا، اب اسے پتہ ہی نہیں خدا کو حساب دینا ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس وجہ سے دارو پی رہا ہے۔ اس کو ٹینشن سے، گھر کے ٹینشن سے، بیوی کے ٹینشن سے، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دارو پی لیں گے ٹینشن سے نجات پالیں گے، ڈپریشن سے نجات پالیں گے۔ اب اس کا نشہ جب تک تھا ڈپریشن سے نجات پا لیا، نشہ جیسے ہی اتر گیا ڈپریشن ختم نہیں ہوئی، اب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ دارو سے ٹینشن کہاں ختم ہو رہی ہے، اس نے زہر گھول کر کے کھا لیا، ٹھوگی کا گدھا، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا۔ ہمارا جوان دارو کیوں پیتا ہے؟ تیسری وجہ کہ دارو پینے کی وجہ سے شرم و حیا نکل گئی، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ کون اچھا کہہ رہا ہے کون برا کہہ رہا ہے۔ اس لاپرواہی کا نتیجہ ہے کہ دارو کو جوانی میں پکڑ رہا ہے، جوانی میں چھوڑ نہیں رہا ہے، بڑھاپے کی امید پر ہے کہ بڑھاپے میں چھوڑے۔ 3 گناہ میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو زیادہ فرمائے۔ مستدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے، سنن بیہقی حدیث کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے لکھتا ہوں، بتا رہا ہوں کہ ایک عورت نے دروازہ کھولا، جوان کو اندر بلایا، دروازہ بند کر دیا، جوان سے کہا کہ دروازہ کھلے گا تمہاری جان بچے گی، 1 گناہ کرنا ہوگا، سب سے چھوٹا گناہ کرو، مجھ سے زنا کرو۔ اس جوان نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ زنا بہت بڑا گناہ، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔
उस औरत ने कहा कि ये मासूम बच्चा है, इसको कत्ल कर दो, ये छोटा गुनाह है। उसने हाथ जोड़ करके कहा कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह, ये हमसे नहीं हो सकता। औरत चालाक थी, एक गिलास दारू लेकर के सामने आ गई कि एक गिलास दारू पी लो, दरवाजा खुल जाएगा, चले जाना। उसने समझा कि दारू सबसे छोटा गुनाह है, जो सबसे बड़ा गुनाह था उसको सबसे छोटा समझा। जैसे ही हलक के नीचे दारू आई, सर पर नशा चढ़ा, उस औरत से जिना भी किया, उस मासूम को कत्ल भी किया। एक शराब आई, सारे गुनाह। पहले जब मुसलमान गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता था तो दारू छूट जाती थी। आज मुसलमान जब तक जवान है दारू छोड़ ही नहीं रहा। नमूना आपकी खिदमत में, आखिरी मिसाल आपकी खिदमत में देकर के इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। मैं हाथ जोड़ करके अपने जवानों से कहता हूं, 1 साल दारू छोड़ करके देखिए, अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह बेदार हो चुके हैं। मेरा बड़ा दिल खुश हुआ कि आप दिमाग से भी यही हैं, जिस्म से भी यही हैं। मेरे पैगाम की हिफाजत हो रही है। आप भी सोचेंगे कि बार बार हाथ उठाने के लिए क्यों कह रहा है। मैं आपकी बेदारी को टटोलना चाहता हूँ कि आप यही हैं, मदरसे में हैं कि ससुराल में, ये मुझे देखना होता है। और दूसरी बात कि मेरे पैगाम की हिफाजत हो रही है, मेरा पैगाम ज़ाय हो रहा है। आप थक तो नहीं गए। जब जोश के साथ आपका हाथ उठता है तो बड़ा दिल खुश होता है। एक गैर मुस्लिम था, नसरानी था, ईसाई था। वो बोला किसी आलिम के पास कि इस्लाम कबूल कर लेता, कलमा पढ़कर मुसलमान में हो जाता, लेकिन इस्लाम में दारू हलाल नहीं। तो उस आलिम दीन ने मंतिक से कहा, तुम नौ मुस्लिम रहोगे, नए नए इस्लाम कबूल करके मुसलमान बनोगे, दाएं बाएं पीते रहो। बड़ा खुश हुआ, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अब जब दारू की बोतल की तरफ उसने हाथ बढ़ाया, इसने कमर से कोड़ा निकाला, 80 कोड़े मारो। अब सर पर हाथ रख करके बैठ गया, बेकार किया, इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम में अपने पैर को दाखिल किया, ऐसा करते निकाल लेते। उसने तलवार निकाली, 2 टुकड़े कर दूंगा। तो मुस्कुरा करके कहता है सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। मैंने बाप दादा का रिकॉर्ड तोड़ दिया था दारू पीने। जब दिन में पीता था तो वजीर आजम को बाप का साला बनाता, जब रात में पीता था तो वजीर आला को दादा का साला बनाता। मेरा बाप दादा कब्र में चला गया, दारू नहीं छुड़ा सका। एक कलमा पढ़कर क्या मुसलमान हुआ कि इस्लाम की बरकत से जिंदगी भर की जो आदत थी एक झटके में चली गई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हम मुसलमान हैं, दारू पीने से पहले 100 बार सोचेंगे कि अल्लाह ने इसको हराम करार दिया है। हम खुद भी बचेंगे, अपने पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहाँ चाहिए खराब, मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। होश मुझको रहे तो सितम घेर ले, कहीं दुख घेर ले, कहीं गम घेर ले। होश मुझको रहे तो सितम घेर ले, कहीं दुख घेर ले, कहीं गम घेर ले। सही कौन ये अज़ाब, मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब, मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से मुकम्मल करके मर्दों के इस जलसे को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप ऐसा सुन रहे हैं, महसूस हो रहा है कि आपके सर पर परिंदा है। अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से आपको माला माल फरमाए। इत्तेहाद और इत्तिफाक के हवाले से मैं जो आया, इस शहर के अंदर मेहमान बनकर के आया हूँ और मेहमान मुकर्रर बनकर के भी आया हूँ। तो मैं परेशान इससे नहीं हूँ कि आप लोग खाते कैसे हैं, कमाते कैसे। मैं परेशान इससे हूँ कि कहीं आप लोग माल और दौलत की रेल पेल में दूसरे से हसद करके
आपसी झगड़े में तबाह बर्बाद ना हो जाए। मैं इससे परेशान हूँ। अगर आपसी इख्तलाफ और इत्तेहाद से अगर आप बच गए, इख्तलाफ से और झगड़े से बच गए, मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूँ आपसे कोई हाथ नहीं मिला सकता। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से पैगाम है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? जो उसके साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब मुकदमा हार जाएंगे तब माफ करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक जवान ने बहुत तेज हाथ उठाया था, जब उसको समझ में आया तो जोर से झटका लिया। खैर माशाअल्लाह, बेदारी में मुकम्मल सुन लें, अल्लाह इस बेदारी को सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा, 3 चीजों को कभी तलाश नहीं करना। ऐसा आलिम जो इल्म की कसौटी पर 100% खरा उतरे, इस दौर में आपको ऐसा आलिम नहीं मिलेगा। जो आलिम मिले उसी से फायदा उठाइए। उस आलिम के चक्कर में रहेंगे तो इल्म से भरूंगा। दूसरी चीज को तलाश नहीं करना है, ऐसे आमिल को तलाश नहीं करना है कि जो 100% नेक काम करता हो अल्लाह की खुशी के लिए, इखलास से काम करता हो, ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा। उस आदमी को तलाश करने के चक्कर में रहेंगे, अमल से महरूम हो जाएंगे। और तीसरी चीज को तलाश मत कीजिएगा, ऐसे भाई को तलाश मत कीजिएगा जिसके अंदर कोई ऐब ही ना हो, जिसके अंदर कोई गुनाह ही ना हो, जिसके अंदर कोई कमी ना हो। ऐसा भाई आपको नहीं मिलेगा। अगर ऐसे भाई को तलाश करने के चक्कर में रहेंगे तो भाई से महरूम हो जाएंगे। एक दरख्त था, मौलाना मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह को प्यारे हो गए, यहाँ 2 बार आ चुके। उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम है अदलिया और समाज। हजरत थानवी हकीमुल उम्मत, उन्होंने किताब लिखी, उसकी खुतबात हकीमुल उम्मत उनकी किताब है। उस किताब में लिखा हुआ है कि एक दरख्त था घर के आंगन में, 2 भाई का झगड़ा हुआ। बड़े भाई ने कहा मेरा है, छोटे भाई ने कहा मेरा है। उस दरख्त का झगड़ा घर में हल नहीं हुआ, अदालत में गया। दोनों ने मूंछ की लड़ाई में, पगड़ी की लड़ाई में पैसे को जेब से निकाल करके वकील की जेब में डाला कि मैं जीतूंगा, दूसरे को जीतने नहीं दूंगा, वो दरख्त मेरा होगा, मेरे भाई का नहीं होगा। 10 साल तक मुकदमा चलता रहा, फैसला किसी के हक में नहीं आया। 10 साल के बाद फैसला आया अदालत से कि जाओ उस दरख्त को काटो, उसके 2 हिस्से करो, एक हिस्सा अपने भाई को दो, एक हिस्सा अपने पास रखो। दोनों केस मुकदमा में इस तरह तबाह हो चुके थे, हजरत थानवी लिखते हैं, दरख्त कटाने के दोनों की जेब में पैसे नहीं थे। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। अगर आपके घर में झगड़ा है, मैं गारंटी लेकर के जाता हूं आपको तरक्की नहीं होगी। आप झगड़ा खत्म करके दिखाइए, मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूं, अल्लाह आसमान की बुलंदी पर आपको पहुंचा देगा। नूर आलम खलील अमीन रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह को प्यारे हो गए, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम है मिफ्ताहुल अरबी। उस किताब के नमूने को आपकी खिदमत पर रख करके इस पैगाम को खत्म करने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने किताब में लिखा कि मिस्र में 2 भाई थे, एक भाई कुंवारा था, दूसरा शादीशुदा था। जब तक माँ बाप जिंदा थे दोनों का चूल्हा एक था। माँ बाप का इंतकाल जैसे हुआ चूल्हा अलग हो गया। दोनों ने एक साथ खेती की, बांट करके बराबर बराबर ले लिया। गेहूं की खेती किया, 50 बोझे अपने हिस्से में, 50 बोझे अपने भाई के हिस्से में। जब दोनों भाई बराबर बराबर बांट करके अपने घर लौटे तो बड़े भाई को झटका लगा, यार अपने छोटे भाई से बराबर बराबर बांट लिया, वो तो अभी कुंवारा है, शादी करेगा, लंबा खर्चा होगा, उसको बढ़ा करके देना। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। आप चाहते हैं कि दूसरा भाई आपके लिए भला सोचे, आप उसके लिए भला सोचिए। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। जैसे ही बड़े भाई को दूसरे भाई के लिए भलाई का एहसास हुआ, अल्लाह ने छोटे भाई के दिल में यह एहसास पैदा किया, यार अपने बड़े भाई से बराबर बराबर बांट लिया, अच्छा नहीं किया, उसके हिस्से को बढ़ा करके देना था। उसका तो लंबा खर्च है, बीवी है, बाल बच्चा है, मेरा तो सिंगल खर्च है। अब दोनों भाई परेशान हुए कि अपने भाई का हिस्सा बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं। सोचा कि रात होगी, सन्नाटा होगा, अंधेरा होगा, चुपके से जाऊंगा, अपने हिस्से के भाई को, बोझे को अपने हाथ मिलूंगा, भाई के हिस्से में डाल करके चुपके से आ जाऊंगा, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। यही ख्याल छोटे भाई के दिल में आया, मैं चुपके से जाऊंगा, रात के सन्नाटे में अपने हिस्से का बोझा उठा करके अपने भाई के हिस्से में डाल करके चला आऊंगा, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, मेरी हसरत पूरी हो जाएगी। जैसे ही एक भाई अपने हिस्से के बोझे को उठा करके भाई के हिस्से में डालता है, वो बोझा पलट करके इधर आ रहा है, वो अपने हिस्से के बोझे को इधर डाल रहा है, वो पलट करके उधर जा रहा है।
دونوں نے موبائل کی ٹارچ جلا کر کے جب قریب سے آ کر کے دیکھا تو میرا بھائی ہے، میرے حصے کو بڑھانے کے لیے آیا تھا۔ دونوں نے وہی اعلان کیا، جب دونوں کا ارادہ نیک ہے اور منزل ایک ہے تو آج کے بعد چولہا الگ نہیں ہوگا، ایک ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے محبت سے رہیں گے، گھر کے جھگڑے کو گھر میں حل کریں گے، اگر کوئی ترقی کرے گا اوپر جائے گا کام کھینچ کر کے برابر بن کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ خیر ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں کہ آپ ہیں کہاں۔ ایک سے ایک ملے تو قطرہ بن جاتا ہے دریا، ایک سے ایک ملے تو ذرہ بن جاتا ہے صحرا، ایک سے ایک ملے تو رائے بن سکتی ہے پربت، ایک سے ایک ملے تو انسان بس میں کر لے قسمت، ایک سے ایک ملے تو انسان بس میں کر لے قسمت، ایک اکیلا تھک جائے گا، ایک اکیلا تھک جائے گا، مل کر بوجھ اٹھانا، ساتھی ہاتھ بڑھانا، ساتھی ہاتھ بڑھانا، محنت اپنے لے کے دیکھا، محنت سے کیا ڈرنا، کل غیروں کی خاطر کیا اپنی خاطر کرنا، دکھ بھی اپنا ایک ہے ساتھی، سکھ بھی اپنا ایک، اپنی منزل سچ کی منزل اپنا رستہ نے، ایک اکیلا تھک جائے گا، مل کر بوجھ اٹھانا، ساتھی ہاتھ بڑھانا، ساتھی ہاتھ بڑھانا۔ ماشاءاللہ ہندو مسلمان کے حوالے سے تو مجھے پیغام دینا نہیں تھا، لیکن چونکہ ہندو مسلمان کے حوالے سے پیغام دینا اس وقت ملک کی ضرورت ہے کہ ہندو مسلمان میں بھائی چارہ رہے اور بھائی چارہ ہمیشہ سلامت رہے، ہندوستان سلامت رہے۔ ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننا چاہ رہے، 3 منٹ کا پیغام آئے گا، ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ سنیں گے، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ کوئی فائدہ نہیں، پہلے دل ملانا ہوگا اس کے بعد ہاتھ ملانے سے فائدہ ہوگا۔ دھیان سے سنیے گا، آخری پیغام مردوں کے حوالے سے، بس 5 منٹ کا آپ کا جلسہ بچا ہوا ہے، بالکل ساحل پر کشتی آ چکی ہے، آپ کا جلسہ دعا تک بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ عورتوں کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ پردہ اور تعلیم، ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے 5 منٹ کا پیغام آئے گا اور میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ سنیے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم تھے، اس کا نام تھا مرارجی بھائی دیسائی۔ انہوں نے مسلمان کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں مجھے ایک مؤذن دے دو، ایک امام دے دو۔ تو لوگوں نے کہا کہ پنڈت جی آپ کو تو مندر کا پجاری چاہیے، آپ مسجد کا امام کیوں مانگ رہے ہیں، مسجد کا مؤذن کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو مرارجی بھائی دیسائی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک سڑک ہے اور ایک طرف مندر ہے، اس کا دروازہ کھلا ہے، دوسری طرف مسجد ہے، اس کا دروازہ بند ہے۔ اگر ایک کا دروازہ کھلا رہا، ایک کا دروازہ بند رہا تو ہندوستان کے مقدر پر تالا لگ جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح مندر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اسی طرح مسجد کا دروازہ کھلا رہے، تاکہ ہندوستان کا مقدر کھلا رہے، مقدر پر تالا نہ لگے۔ مسلمانوں تم مجھے ایک امام دے دو، تم مجھے ایک مؤذن دے دو، میں جیب سے تنخواہ دوں گا، تاکہ جس طرح مسجد کا دروازہ بند ہے، مندر کا دروازہ کھلا ہے، مسجد کا دروازہ کبھی بند نہ رہے۔ مہاتما گاندھی جی نے مسلمانوں سے خطاب کیا کہ اس ہندوستان میں 2 قوم ہے، ایک کا نام ہندو ہے، دوسرے کا نام مسلمان ہے۔ ہم نے ہندو سے ہاں کو نکالا، ہم نے مسلمان سے مین کو نکالا، ہاں کو جب مین سے ملایا تو ہم ہو گیا۔ یہ دونوں ہندوستانی ہیں، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو۔ جب مسلمان کو پتا ہے کہ ہندو ہندوستانی ہے، جب ہندو کو پتا ہے کہ مسلمان ہندوستانی ہے، دونوں کا وطن ایک ہے، تو آپسی جھگڑا کیسا ہو؟ اتر پردیش میں ایک ضلع، اس کا نام ہے سنت کبیر نگر۔ یہ کبیر نگر کس نام سے ہے؟ صوفی سنت کبیر داس کے نام سے۔ انہوں نے ہندو مسلمان کو خطاب کیا تو کہا کہ کسی بھی ہندو کو کھڑا کر کے پوچھو کہ یہ دنیا جانے والی ہے، وہ بولے گا ہاں جانے والی ہے۔ کسی بھی مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھو یہ دنیا جانے والی ہے، وہ بولے گا ہاں کلو من علیہا فان، یہ دنیا جانے والی ہے۔ لیکن دونوں سے پوچھو کہ جب مانتے ہو یہ دنیا جا رہی ہے، ہندوستان بھی جانے والا ہے، جب تمہیں پتا ہے کہ یہ دنیا جانے والی ہے، ہندوستان بھی جانے والا ہے، تم ہندو ہو تم کو پتا ہو، تم مسلمان ہو تم کو پتا ہو،
تو یاد رکھنا کہ جانے والی چیز پر جھگڑا نہیں ہوتا. پھر ہندوستان کی شان بان پر ہندو مسلمان کا آپس کا جھگڑا کیسا ہے؟ ایک شاعر گزرے ہیں مرزا غالب، فساد کے زمانے میں راستہ کراس کر رہے تھے. پولیس والے نے آ کر کے پکڑا کہ تم کون ہو؟ کہ میں آدھا ہندو ہوں آدھا مسلمان، 50-50. تو پولیس والے بولے کہ 50-50 بسکٹ ہوتی ہے بریٹینیا، یہ 50-50 کیسے ہو گئے تم؟ تو ظریف آدمی تھے، اس نے اسی انداز میں جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں سور نہیں کھاتا اس لیے آدھا مسلمان، شراب پیتا آدھا ہندو. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے مل کر کے رہیں گے، پڑوسی بن کر کے رہیں گے، بھائی بن کر کے رہیں گے، پارٹنر بن کر کے رہیں گے. نفرت کی دکان چلنے نہیں دیں گے، محبت کی دکان کو رواج دیں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. کا بھاگا کچو گھر نہ رہائی، دیکھت نین چلا جگ جائی. لنکا سی کوٹ ایک لکھ پوت سوا لکھ ناتی، تارا بن گھر دیا نہ باتی. لنکا سی کوٹھی سمندر سکھائے، تارا بن گھر تارا بن کی خبر نہ پائے. کہت کبیرا انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری. کہت کبیرا انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری. پیغمبر کا قول ہے جگت ہے ایک پریوار، پیار پڑوسی سے کرو سکھی رہے سنسار، سکھی رہے سنسار. جیت نہ پائی من کبھی برچھی اور کٹار، سب کا سیس جھکائے ہے، سب کا سیس جھکائے ہے. اخلاق و کردار، اخلاق و کردار. ایک دوہا سنا کر کے پیغام کو ختم کرتا ہوں ہندی اردو کے حوالے سے. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ آپ کا جلسہ نکل چکا ہے. اللہ جزائے خیر دے، ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے. آپ دیکھیں گے جمعہ کا دن ہوگا، بھیک کا کٹورا لے کر کے ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو. ایک آدمی بولا یار بھیک مانگ رہے ہو فٹ بال کھیل لے. بھیک بھی مانگ رہے ہو، سر بھی اٹھا رہے ہو، کٹورا بھی اچھال رہے ہو، تم کو شرم نہیں آتی؟ سر جھکا کر کے بھیک مانگتے ہیں تو بولتا ہے کس بات کی شرم؟ میرا دادا نیشنل فقیر تھا، میرا باپ انٹرنیشنل فقیر تھا، خاندانی پیشہ. لیکن جب ایک آدمی بھیک لینے کے لیے آیا تو اس نے سر جھکا کر کے بھیک دیا. اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے بولا بھائی صاحب بے شرم تو میں بھیک بھی مانگ رہا ہوں، سر بھی اٹھا رہا ہوں، تم تو شریف آدمی، بھیک دے رہے ہو تو سر جھکا کر کے کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کتنی پیاری بات کہی یار. تمہیں تو آج اللہ نے بھیک کا کٹورا لے کر کے کھڑا کیا، کل ہی تمہارے واسطے اللہ نے میری جیب میں پیسہ دے دیا. میرا راستہ کہیں اور نکل رہا تھا، اللہ نے تمہاری طرف ہم کو بھیج دیا. اسی کا پیسہ، اسی کی توفیق سے، اسی کے نام سے میں تم کو دے رہا تھا. مجھ کو شرم آئی کہ اسی کا کام ہے، اس کا بنایا ہوا کام ہے، سب کچھ اس نے دیا ہے اور مفت میں میرا نام ہو رہا ہے. اس لیے میں نے تمہیں سر جھکا کر کے بھیک دیا، سر اٹھا کر کے بھیک دیا. کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی تے، دام گرا سے دیوت ہو نیچے راکھو نے، نیچے راکھو نے. دینے والا دیوت، دیوت ہے دن ہے. لوگ بھرم مجھ پر کرے، لوگ بھرم مجھ پر کرے، یا سے نیچے لے، یا سے نیچے لے. ڈاکٹر تارا چند کہتے ہیں کہ امیر خسرو مسلمان ہو کر کے ہندی زبان کا شاعر ہے. مسلمانوں نے ہندی زبان سے کبھی بھید بھاؤ نہیں کیا. امیر خسرو راستے سے جا رہے تھے، 4 لڑکی کنویں سے پانی بھر رہی. تو امیر خسرو مرحوم نے کہا بیٹی پاس پیاس لگی ہے پانی پلا. تو لڑکیوں نے کہا کہ آپ شاعر آدمی ہیں، آپ کو فری میں پانی نہیں پلائیں گے، آپ شعر پڑھیے. تو امیر خسرو مرحوم نے کہا کہ فرمائش بتاؤ. تو ایک لڑکی بولی مجھ کو کھیر کھانا پسند ہے، کھیر پر مصرع کر. دوسری لڑکی نے کہا میری ماں چرخہ چلاتی ہے، کپڑا بنتی ہے، چرخہ پر مصرع کر.
तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता, कुत्ते पर मिसरा है। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप दारू पी करके मुहर्रम में ऐसा ढोल बजाता है दोनों तरफ से फट जाता है, ढोल पर मिसरा। चार लड़कियों की फरमाइश को मरहूम अमीर खुसरू ने दो मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हम बुलबुले हैं से की, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। औरतों के हवाले से बस एक पैगाम दे करके ज़हमत तमाम। मस्तूरात में बयान था, मैं समझ रहा था कि पता नहीं सर से ऊपर जा रहा है, लेकिन आइंदा से मैं आपको मशवरा देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि हर मशवरे पर अमल ही हो जाए। कि मर्दों का मजमा है, जलसा हो तो आप यहाँ पर एक कैमरा लगाइए प्रोजेक्टर वाला, और औरतों का पिंडाल आप उसकी गली में डाल दीजिए, वहां पर स्क्रीन डाल दीजिए। ये जो जलसा है ये सीधे उठ करके वहां पहुंच जाएगा। और होता क्या है, जब आपकी पेशानी को मैं देखता हूं, आप हमारी पेशानी को देखते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज से ये महसूस हो जाता है कि आप हमको समझ रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूं और आप सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो इसका अच्छा खासा नतीजा बरामद होता है। लेकिन जब सामने मजमा नहीं होता, सुनाने वाला मुतकल्लिम सामने नहीं होता, तो पता ही नहीं चलता कि कौन सुना रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। इसलिए छोटा सा काम कर लीजिएगा, इस जगह एक कैमरा होगा और ये कैमरा सीधे इस स्टेज को खींच करके औरत के पिंडाल में पहुंचा देगा। वहाँ स्क्रीन होगा और वहाँ मुतकल्लिम भी सामने है, खिताब भी सामने है, और मैं आपके सामने हूँ, आप हमारे सामने हैं। चूँकि आपकी तलब हमारे अंदर तलब पैदा करती है, और जब आपके अंदर तलब होती है तो मेरे इल्म में, मुताले में इजाफा होता है। कोई ज़रूरी नहीं, अमल हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, वहाँ जलसा होगा, देखा जाए। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बच्चा मुकालमा पेश कर रहा था तो आपने देखा कि बाप का किरदार कैसा होता है, माँ का किरदार कैसा होता है। औलाद में, बच्चे में 3 फर्क है, औलाद में और बच्चे में 3 फर्क है, माँ बाप में, औलाद में 3 फर्क है। दिखाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शादी हो गई लड़की की, उसको चांद जैसा शौहर मिला, चांद जैसा शौहर मिला। लड़की की शादी हो गई, उसको जन्नत जैसा घर मिला, खाता पीता खानदान है, लेकिन लड़की गाल पर हाथ रख करके बैठी हुई है, मायूस। लोगों ने कहा कि अरे घर में कोई परेशानी नहीं है, इतना अच्छा शौहर मिल गया, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, इतना अच्छा ससुर मिल गया, खाता पीता परिवार है, खानदान है, मकान दुकान वाला है, फिर मायूस क्यों हो? माँ बाप का किरदार दिखाने के लिए जा रहा हूं। वो औरत कहती है 1 साल हो गया, 2 साल हो गए शादी को, गोद में बच्चा नहीं आया तो सब कुछ बेकार है। बच्चे की नेमत माँ बाप से पूछिए कितनी बड़ी होती है, जन्नत जैसा घर मिले, बच्चा नहीं तो सब कुछ बेकार। दूसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखता हूं, यही अकोला रेलवे स्टेशन है, बंबई से हमारा बच्चा आ रहा, वहां से खबर कर रहा है फोन में कि मैं घर आ रहा हूं। माँ को भी पता हो गया, बाप को भी पता हो गया, बीवी को भी पता हो गया, बच्चे को भी पता हो गया। आते आते रात हो गई और घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। अब देखिए मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं माँ बाप में और बीवी में क्या फर्क है। बीवी सो गई है, बच्चे सो गए हैं, अब बूढ़े माँ बाप अपनी औलाद के इंतजार में जाग रहे हैं। तीसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। कभी कभी बच्चे माँ बाप से नाराज होते और कभी माँ बाप बच्चे से नाराज होते, दोनों का फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं। जब माँ बाप बच्चे से नाराज होते हैं तो घर छोड़ करके भाग जाते हैं, सुबह को भागे शाम में लौट गए।
शाम में भागे, सुबह को लौट गए। अब बच्चे ताना मारते हैं कि जब भागना ही था तो आए क्यों? तो माँ बाप कहते हैं कि तुम्हारी मोहब्बत मेरी नफरत पर गालिब आ गई। लेकिन जब बच्चा माँ बाप से नाराज होता है तो घर छोड़ करके ऐसा भागता है, ससुराल पकड़ लेता है। वापिस कब आता है? जब बाप का जनाजा उठता है, माँ का जनाजा उठता है, फूट फूट पड़ करके घड़ियाल के आंसू बहा रहा है। अरे अब आंसू बहाने से क्या होगा? सांप तो निकल चुका, लकीर को पीट करके कुछ नहीं होगा। ये माँ बाप का फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं। आखिरी मिसाल पैगाम खत्म करता हूं। कुर्सी पर बेटा बैठा हुआ है, कुर्सी पर माँ बैठी हुई है। तो माँ खिसिया करके कहती है कि बेटे, मैंने 32 धारे दूध तुमको पिलाया, अगर तुम मेरी नाफरमानी से बाज नहीं आओगे माफ नहीं करूंगा। तो बच्चा कहता है सीना तान करके, सर उठा करके, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तूने मुझे अपना दूध नहीं पिलाया है, डब्बे का दूध पिलाया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी के बाद सास ससुर को और शादी से पहले माँ बाप को कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत बड़े बड़े लोगों की चोरी नहीं पकड़ी गई, देश ब्रेक मार करके साबित किया है कि यही है। ठुकराया जिसने बाप को, घर से दिया निकाल, उसको समझिए दीन की दौलत नहीं मिली। गुस्ताख वालिदैन को रब की तरफ से भी जन्नत में लेके जाए, वो फितरत नहीं मिली। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाओ तेरे बदले लेकर तेरी बनाए। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा, तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी। जग में रहे तो जिंदा, उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा, ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ ममता के प्यारे। सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। माँ से तो क्यों खफा है, आ तुझे मना लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत, तुम्हारे काम आएगी, यह खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम। ये खिदमत अता होगी पैसे की बुरिया, रोजी में भी बरकत है। अल्लाह की रहमत साया बगल होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा बगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। पैगाम खत्म हो गया, इतिहास बाकी रह गई। ये दलील है कि जलसा कामयाब हो गया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ज़मीन से लेकर के आसमान तक इस जलसे को कबूल फरमाए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाए। 3 वादे पर आप खड़े हो जाइए, हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आज आज़ान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।
न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में। पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, क्रिकेट के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था।